رات کے 3 بج رہے ہیں، مجھے نیند نہیں آ رہی۔ اللہ سے دعا مانگی ہے میں نے، شکر ہے اللہ پاک کی طرف سے مجھے کہ میرے دل میں ایک خیال آیا کہ میں اس کو دیکھ لوں، ایک نظر دیکھ لوں۔ دیکھا تو اس نے سانس بالکل روکی ہوئی تھی۔ جب میں سیٹ اگر پی لوں تو پھر میرے انرجی لیول کچھ اور ہی ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر اچار تو ہے نہیں، آئل ہی آئل ہے سر۔ اچھا سب جگہ یہی چل رہا ہے، موسم خراب، نزلہ خراب، موڈ خراب۔ میرا اپنا ایکسپیرینس جب میرے ساتھ کیا ہوا اور کیا مسئلے ہوئے، کیا پریشانیاں ہوئی، چلو چائے کی چسکی تو مار لوں میں ذرا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی۔ میں کھڑی ہو گئی، نیچے چائے کا ہوٹل بنا ہوا ہے، اب وہ بھی بند ہونے کی تیاری کر رہا ہے۔ صحیح ہے، اللہ سے دعا مانگی ہے میں نے کہ اللہ پاک مجھے جلد سے جلد کامیاب کر دے اور میرے سبسکرائبر بھی پورے ہو جائیں۔ اللہ پاک ہمیں اسی طرح کامیاب اور خوش رکھے، سکون رکھے، آرام رکھے ہماری زندگی میں۔ اور آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں پر سبسکرائب نہیں کرتے تو پلیز سبسکرائب کریں۔ رات کے 3 بج رہے ہیں اور ابھی اللہ سے بات کر کے ہٹی ہوں میں۔ اللہ سے باتیں کی میں نے خوب ساری، اپنے بہن بھائیوں کے لیے دعا مانگی، جو لوگ پریشان ہیں ان کے لیے دعا مانگی، اپنے لیے دعا مانگی۔ اور میں زیادہ تر جب اکیلی ہوتی ہوں تو میں اسی پر اللہ سے بات کرتی رہتی ہوں۔ کیا کرے، جب انسان اکیلا ہوتا ہے نا تو پھر اسی طرح اپنے ساتھ پھر باتیں کرتا ہے، اکیلے اپنی تنہائیوں میں، اپنی چاند، اپنی ہواؤں میں، خوبصورت سی روشنی میں اللہ سے باتیں کرتا ہے۔ میرا اللہ ضرور سنے گا میری، انشاءاللہ۔ مجھے اللہ پہ یقین ہے، جب اللہ نے مجھے یہاں تک پہنچایا ہے نا تو اللہ ضرور سنے گا میری۔ آپ یہ دیکھیں کہ میں کتنے یقین سے بولا ہوں، مجھے واقعی بہت زیادہ یقین ہے اللہ پر کہ اللہ پاک مجھے ضرور کامیاب کرے گا، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ اس لیے نہیں کہہ رہی کہ آپ لوگ مجھ سے ہمدردی کر کے جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، کامنٹ کر دیں، اس لیے نہیں، مجھے واقعی میں اللہ سے بہت امید ہے، کیونکہ آپ یقین کریں میں جو دعا مانگتی ہوں نا، اللہ کا شکر ہے قبول ہوتی ہے۔ میں نے خود آزمایا ہوا، دیکھا ہوا۔ تو جی میرے ویورز فیملی نے دیکھ لیا کہ میں یہاں کیا کر رہی ہوں، اللہ سے باتیں کی، اس کے بعد اپنی یوٹیوب فیملی سے باتیں کی۔ تو اب چلے دیکھتے ہیں کہ ہسبینڈ صاحب کیا کر رہے ہیں۔ چمچہ بھی چاہیے مجھے۔ سر یہ کیا کرنا ہے سر؟ یہ کیا ہو رہا ہے سر؟ یہ وہ مکس کر رہا۔ سر اس کے اندر اچار تو ہے نہیں، آئل ہی آئل ہے سر۔ اچھا یہ بن رہی تھی۔ تو جی آپ نے دیکھ لیا ہوگا کہ ہسبینڈ صاحب کیسے پارٹی انجوائے کر رہے تھے۔ تو جی اسٹاف چھٹیوں پر تھا اور سب نہیں تھے، تو یہ چھوٹا موٹی سی پارٹی چلتی ہے رات کے 3 بجے۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے آپ سب؟ امید کرتے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اللہ پاک آپ لوگوں کو اسی طرح ٹھیک رکھے، خوش رکھے، امید سے رکھے۔ امید سے سمجھ رہے ہیں نا ہم؟ سمجھ رہے ہیں اللہ پاک اچھا جو نہیں چاہتے وہ امید سے نہ ہو، لیکن جو چاہتے ہیں وہ تو امید سے ہو سکتے ہیں نا۔ اچھا چلے، مذاق، ہنسی مذاق، سب کچھ مستی تو چلتی رہے گی، فیملی کے ساتھ بھی کریں گے تو کس کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے۔ اچھا جی، میں آج آپ لوگوں کو بسات، یہ پچھلے ولاگ میں جیسے میں نے آپ کو کہا تھا کہ آب و ہوا چینج ہو گئی اور سب جگہ یہی چل رہا ہے، موسم خراب، نزلہ خراب، کھانسی زکام سب جگہ چل رہا ہے اور موڈ خراب۔ ولاگ بنانے کو بالکل کام نہیں کر رہا، ایڈٹ کرنے کو بالکل دل نہیں کر رہا، کام کرنے کو بالکل دل نہیں کر رہا، بس دل کر رہا ہے سارے کام خود ہو جائے جادو سے۔
जैसे मैं सोचती हूँ, अब मुझे अगलों का नहीं पता, सही है। अच्छा, पहली बात आज मैं करती चलूँ कि नज़ला ज़ुकाम तो आपको पता है कि किस तरीके से परेशान करता है, कि सर में पूरा आधे सर में दर्द शुरू हो जाता है, नाक बेरी, अब बस बता नहीं सकती मैं क्या होता है। तो जी, आज मैं आप लोग के साथ बड़े खूबसूरत टॉपिक ये शेयर करने वाली हूँ कि मेरा अपना एक्सपीरियंस, कि मेरे साथ क्या हुआ और क्या मसले हुए, क्या परेशानियाँ हुई और मुझे क्या क्या फेस करना पड़ा जब मेरी बेटी अभी 7 साल की हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने उसको ज़िंदगी दे दी। लेकिन हुआ क्या था, कुछ ऐसा था कि जब वो पैदा हुई है तो वो 6 दिन की थी। मुझे बिल्कुल भी इस बात का इल्म नहीं था कि उसका सीना ख़राब, ना कोई महसूस हुआ कि उसका सीना ख़राब है, ना कोई उसकी नक्की बह रही थी, मतलब उसकी ना कोई नज़ला ज़ुकाम, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं थी इसको। साथ कोई मसले नहीं, अच्छी खासी खेलती कूदती, सब कुछ सेट चल रहा था। तो अब इस हिस्टोलॉजी की जिस तरीके से बॉर्न बेबी है, और ज़ाहिर सी बात है बहुत सारे मसले इस तरीके से ख़राब हो जाते हैं, और जिन माँओं को नहीं पता होता, क्योंकि गांव के रहने वाले ज़्यादातर होते हैं, और कोई जो यूट्यूब वगैरह टिकटॉक वगैरह ये सब चीज़ें नहीं यूज़ करता, जो चीज़ें यूज़ नहीं करता, क्योंकि मैं भी उस वक्त यूज़ नहीं करती थी तो मुझे भी इल्म नहीं था, मैं भी थोड़ी सी नासमझ थी। और नई नई शादी होती है तो पहला पहला होता है वैसी नासमझ होता है, और ज़ाहिर सी बात है हर किसी के साथ तो जॉइंट फैमिली और फैमिली करीब नहीं होती, जिनके पास फैमिली नहीं होती और बॉर्न बेबी उनकी पैदाइश हो जाती है और फिर वो थोड़ी छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है। तो वो मेरा व्लॉग, मेरी तो अल्लाह करे कि मेरी इस बात से सबके फ़ायदे पहुँचे, क्योंकि मेरा तो काम है आप लोगों को अच्छी सलाह देना, अच्छी एडवाइस देना। अच्छा, दूसरी चीज़, वैसे तो आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग मुझसे बेहतर समझते होंगे, लेकिन जितने आपकी बहन, आपकी सिस्टर, आपकी बाजी जितना जानती है तो मैं आप लोगों से शेयर करती रहूँगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक आप लोगों को सेहत तंदुरुस्ती वाली औलाद दे, जिनके लिए अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, उनकी खुशियाँ भी आप लोग को देखना नसीब करें। बातें तो चलती रहेंगी और वीडियो इस तरीके से लंबी होती जाएगी, क्योंकि मेरी आज जब मैं एनर्जी, मैंने कहा ना, जब मैं सी टावर पी लूँ तो फिर मेरे एनर्जी लेवल कुछ और ही हो जाता है। चल, बातों के साथ साथ करते चलें तो चलो, चाय की चुस्की तो मार लूँ मैं ज़रा। तो शुरू से मैं आप लोग को स्टोरी बताऊँ कि हुआ क्या था। तो जी, 6 दिन की वो हो चुकी थी, 7वां दिन था और मेरे मुहर्रम था, और मुहर्रम में मेरे हस्बैंड ने बोला चलो मैं जूस के लिए शरबत बना लेते हैं। शरबत में मैंने चलो जूस बना लेते हैं, जूस बाँट लेंगे, सही है। तो वो फिर शरबत का सामान भी लेने चले गए और साथ में जूस का सामान भी लेने चले गए मुहर्रम के लिए, सही है। वो जैसे ही निकले हैं 5 मिनट भी आप यकीन करें उन्होंने गली क्रॉस भी नहीं की थी। चले, मैंने जितनी देर ये आ रहे हैं मैं तब तक रोटी डाल लेती हूँ तवे पे, सही है। क्योंकि जब कोई भी नहीं होता आपके पास, जॉइंट फैमिली नहीं होती, तो फिर आपको खुद ही सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। तो मैं रोटी डालने चली गई, मैंने रोटी बनानी शुरू की। मैंने कहा चलो एक नज़र देख तो लूँ मैं ज़रा। तो आप यकीन करें मैंने उस रूम में उसको अकेला छोड़ा था, लेकिन वो खेल रही थी, हंसती खेलती, और किचन के पास ही वो रूम था, बिल्कुल करीब में। अब मैंने तवे पे रोटी डाली और रोटी डालते मैंने इसको एक झलक खिड़की से देख लिया, तो ये सही थी। फिर मैंने दोबारा जैसे दूसरी रोटी डाली, मैंने फिर एक झलक देखा तो उसने सांस बिल्कुल रोकी हुई थी उस वक्त। आप ये देखें, हम छोटी छोटी मिस्टेक कैसे कर लेते हैं कि नहीं, बच्चे को अकेला छोड़ के कमरे में चले जाते हैं। और फिर तो शुक्र है अल्लाह पाक की तरफ से, मैं देखे मेरे दिल में एक ख्याल आया कि मैं इसको देख लूँ, एक नज़र देख लूँ। और आप यकीन करें जैसे ही मैंने देखा तो उसने वाकई में सांस रोकी हुई थी। तो मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल टाइम था, अल्लाह पाक ने वो निकाल दो, किसी दुश्मन पे भी वो टाइम ना आए। लेकिन खैर मैं ऐसे तैसे करके, बस मैंने चप्पल भी नहीं पहनी, मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था, क्योंकि मेरे बच्ची की सांस रुकी हुई थी। बस सांस उसको इतनी देर की आ रही थी जैसे कि मैंने उसको बिल्कुल कमर की तरफ, मैंने उल्टा करके कमर की तरफ तबकी दे रही थी। तो उसको कमर की, मतलब मेरे हाथ की वजह से उसको करके ऐसे करके सांस आ जाती थी बीच में, जैसे कि, और उसकी सांस बंद थी, उसकी फुल रेड हो गई थी, तबीयत उसकी बिल्कुल ख़राब हो गई थी। मुझे दुख, और हाथ पैर ठंडे मेरे, बहुत मुश्किल रहा, मुझसे पकड़ी भी नहीं जा रही थी अपनी औलाद, आप यकीन करें। और मैं अकेली थी, मेरे पास पड़ोस वगैरह कोई भी नहीं था, तो मैं उसको अकेली लेके भागी थी। और रोड पे निकले, रिक्शे में बैठी, क्योंकि रिक्शे वाले भी उसकी हालत देख रहा था। फिर मैंने जो करीब में हॉस्पिटल, बस 1 मिनट के अंदर मैं पहुंची हूँ, बस मैं ऐसी कमर पे तबकी मारती रही बीच में, ऐसे करके सांस लेती रही। और बस खैर जब डॉक्टर के पास पहुंचे तो डॉक्टर ने कहा कि आपको पता नहीं कि आपकी बेटी का सीना कितना ख़राब है, डांट रहे थे वो। और पूरे तरीके से, मतलब उसकी नाक पूरी बंद थी और सीना ख़राब था प्रॉपर, जैसे कि वो जैसी हुई थी उस वक्त से उसका सीना ख़राब था। और
हमें पता तक नहीं लग रहा था। बन नज़ला होगा, कुछ होगा, क्योंकि बच्चों का इतना ज़्यादा इल्म नहीं, क्योंकि वो खेल रही थी, हंस रही थी, बोल रही थी, सब कुछ, तो इतना महसूस नहीं हो रहा। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कहती हूँ कि अपना ख्याल रखा करें बॉर्न बेबी का भी, क्योंकि पता नहीं चलता, थोड़ी थोड़ी तबीयत वो एकदम ख़राब हो जाती है और नमोनिया का चक्कर हो जाता है, बहुत मसले ख़राब हो जाते हैं। मेरे सामने के बड़े किस्से हैं। अब मैं व्लॉग जितनी जितनी स्टोरी लंबी करूँगी तो फिर व्लॉग और मज़ीद लंबा होता जाएगा। खैर, दूसरी बात ये मैं करती चलूँ कि जब फिर खैर ये तभी यहाँ पर स्टोरी हो गई। मैं अगले व्लॉग में आप लोगों को, क्योंकि फिर और मज़ीद लंबा होता जाएगा, तो आप इसका पार्ट 2 ज़रूर देखिएगा कि फिर मेरी बेटी को नज़ला, ज़ुकाम, सीना ख़राब तो रहता ही था, मतलब ठीक नहीं होता था, सही है। हर दूसरे तीसरे दिन हफ्ता भर गुजरता था, फिर सीना ख़राब, हर दूसरे दिन सीना ख़राब, हर तीसरे दिन सीना ख़राब, क्योंकि हर घर के काम करने वाली एक मैं ही थी। तो जी इसका पार्ट 2 देखना है तो आप इससे अगले व्लॉग में देख सकते हैं। अभी मैं इजाज़त चाहती हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो रही है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।